Assalamu alaikum. Hi viewers, how are you? I'm Dimrana from Government Graduate College Toba Singh. I hope you all fit and fine. Welcome to the month of May. Summer season in its full swing, right? When it comes to the month of May, I just remember Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer, father of English poetry. उसका बेटे कैरेक्टर है स्क्वायर, तो उसके बारे में वो कहता है कि ही इज़ एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मई. चीज़ें बड़ी निखर से जाती हैं ना, क्लियर हो जाती हैं. मतलब शायद उसने वो इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हो, बट राइट हियर वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, द कंडीशंस आर अदरवाइज इन पाकिस्तान, वी नो दैट राइट. यहाँ बड़ा मतलब स्कॉर्चिंग, बर्निंग, रोस्टिंग सन, ऊपर से ये रमज़ान मुबारक का मंथ भी चल रहा है. इट्स वेरी हार्ड बट इज़ अ ब्लेसिंग्स ऑफ मंथ, right? It's a month of blessings, right? We are just moving with great patience, with great enthusiasm, right? We thank God for everything, whatever He has created for us. We thank God for that He blessed us with this holy month. So let's start today's lecture. As you know that today's lecture is the part of the previous lecture, right? In previous lecture we talked about the kinds of different paragraphs. We discussed 6 types of paragraph. So this is a part of the previous lecture, and we are here to discuss, you can see, the remaining types of the paragraphs, right? Let's move on to our type number 7. एक्सप्लेनेशन. अब बेटा जो एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, वो सिंपली वी गिव आवर ओपिनियन ऑन समथिंग. हम किसी चीज़ के मतलब ना अपना ओपिनियन देते हैं, या किसी और शख्स का हम ओपिनियन देते हैं, फाइन. या फिर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करते किसी चीज़ को, फाइन. वहाँ पे हम क्रिटिकल नहीं हो रहे होते. सिंपली एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं, वी मेक थिंग्स ईजियर. हम चीज़ों को और आसान करते हैं. एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ के अंदर आपने क्या करना, यू गिव योर ओन ओपिनियन, यू जस्ट कोट अनदर पर्सन's ओपिनियन ओवर हियर, एंड सिंपली you don't criticize things, simply you make things more clear for the reader. In this paragraph we do stuff like this, right? So let's go into details. Paragraphs that we developed using the explanation mode attempt to explain the central idea of the topic or key sentence of the paragraph. हमने बस जो central idea होता है उसको explain करना होता है, जो key sentence होता है उसकी वजाहत करना होती है. If the central idea talks about the result of formation of ice crystals, the remaining sentences of the paragraph should explain how the crystals are formed or the process that leads to crystal formation. In other words, what the topic sentence contains the main idea, the supporting sentences provide adequate justification or rationale behind this idea. For example, if you're asked to write a paragraph on the newly introduced method of extracting metal from its ores, you need to explain why the new method has been introduced or how it is better than the earlier one. Look at the same sample explanation paragraph given below. The 3 supporting sentences that follow the first sentence, which is the topic sentence, provide an explanation as to why sending humans back into outer space has become tougher for the US government. मतलब बेटे हम बात कर रहे हैं कि यूएस को मतलब स्पेस में लोग भेजने का जो प्रोसेस था वो उनके लिए टफ हो गया, ये उनके लिए चैलेंज बन गया. वो क्यों बन गया, यानी यूएस के लिए अब अपने लोगों को स्पेस में भेजना मुश्किल हो गया है. अब वो क्यों हो गया उसको हम ज़रा वजाहत देखते हैं एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ के अंदर. Sending humans back into outer space has proved tougher than any rocket science. ये वैसे भी बड़ा किसी भी मतलब और एक साइंटिफिक एक्टिविटी से और मुश्किल काम है ह्यूमंस को स्पेस में भेजना. Since the end of the Cold War, the US government has been unwilling to expand the substantial capital needed to go to the moon and onto the Mars. अब उनके पास इतना कैपिटल नहीं है, इतना सरमाया नहीं है कोल्ड वॉर के बाद, क्योंकि वो मतलब ज़ाहिर बात आपको पता है कि अमेरिका की जब बात हो, यूएस की बात हो, तो ये जो मुल्क है वो हैज़ बिन बिजी इन डिफरेंट वॉर्स इन द वर्ल्ड, राइट. तो जो मुल्क भी जो जंग में इन्वॉल्व होता है
तो उसकी इकोनॉमी पे बड़ा बुरा असर पड़ता है, वो खोखला हो जाता है अंदर से. फाइन. The same is the case with America. Fine. Let's see. Since the end of the Cold War, the US government has been unwilling to expand the substantial capital needed to go to the moon and on to the Mars, as proposed by President Bush. What America has lacked is a vehicle that can get there and be safe and be affordable. यानी मैं अमेरिका के पास बेटे वो व्हीकल ही नहीं है जो बहुत सेफली, वो गाड़ी नहीं है, वो स्पेसशिप नहीं है, मतलब जो वहाँ लोगों को बड़ा महफूज तरीके से वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दे सके और साथ ही वो अफोर्डेबल भी हो. यानी सारी बात वो जंग में इन्वॉल्व है, सरमाया सारा बाकी चीज़ों पे लगे जा. नाउ थैंक्स टू एन aggressive push by NASA administrator माइकल ग्रिफिन. ये नासा जो मतलब बेटे एक इदारा है उसकी तरफ से उनको जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ का माइकल ग्रिफिन, उन्होंने ज़रा पुश किया. The space agency finally has a design for such spacecraft called the Orion Crew Exploration Vehicle. अब ज़रा मतलब उस पर काम हो रहा है जिस पर वो आगे भेज सकते हैं कुछ मतलब बेहतरी की तरफ. एक आप कह लें कि एक इंडिया है कि इशारा है. आई थिंक यू गॉट इट. फाइन. नेक्स्ट बेटे हम स्लाइड की तरफ चलते हैं. ये हमारे एक्सप्लेनेशन की हमने बात की है कि सिंपली अपना ओपिनियन देते हैं, किसी और को ओपिनियन देते हैं और चीज़ों को और आप वजाहत करते जाते हैं. सेंट्रल आइडिया को आपने वजाहत करना होती है. आगे बेटे इलस्ट्रेशन. अब इलस्ट्रेशन भी वजाहत के कॉन्टेक्स्ट में हम लेते हैं, एक्सप्लेनेशन. अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? जो इलस्ट्रेशन होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी यूज स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई एंड सपोर्ट अ स्टेटमेंट, अ जनरल स्टेटमेंट. जो हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट होती है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसमें और मतलब क्लैरिटी लाने के लिए, कॉन्सेप्ट को और वाज़े करने के लिए नज़रिए को हम मुख्तलिफ मिसालों का, मखसूस मिसालों का इस्तेमाल करते हैं. फाइन. एन इलस्ट्रेशन पैराग्राफ डेमोन्स्ट्रेट्स द मेन आइडिया बाय प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स. लुक एट, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अब ज़रा एग्जाम्पल चेक करिए. Man's fascination with machines that move under their own power and control is at least as old as recorded history. जितनी तारीख पुरानी है उतनी कहता है कि ये इंसान की फितरत है कि वो मशीन ने जो उसके ताबे हों वो मतलब बनाना चाहता है. In Aristotle's Greece, plays several acts are said to have been performed entirely by automatic puppets driven by wires hung on twisted cords. अब देखें कि एरिस्टोटल के टाइम में बेटे क्या होता था, बहुत सारी पपेट जैसे कठपुतलियाँ होती हैं, वो कॉर्ड धागों के साथ उनको कंट्रोल किया जाता था और उनसे परफॉर्म करवाते थे. फाइन. मच लेटर यूरोपियन रॉयल्टीज वर enthralled by lifelike automata that could wire, draw and play musical instruments. फिर बाद में आपको पता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जिनको मतलब बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीनरी है वो उसने इंसान को हैरान कर दिया. In recent years, most of the magical aura surrounding mechanical automata has been dispelled. Fine. कि जो recent years में क्या हुआ, most of the magical aura, fine, surrounding mechanical automata has been dispelled. इसको भी मतलब मार्केट में सब कुछ आ चुका है. Today, automatic machines and industrial robots are useful in फैक्ट्रीज. अब उनको डिस्पेल कर दिया गया था जो मतलब मैकेनिकल ऑटोमाटा था. अब क्या हो गया, अब इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मशीन्स, ऑटोमेटिक मशीन्स मार्केट के अंदर आ गई हैं, इस्तेमाल हो रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड टू परफॉर्म टास्क्स दैट आर टू हैजर्डस. अब इसका बेटा तलफ़ुज़ चेक करें. हैजर्डस लोग बोलते हैं, तलफ़ुज़ है हैजर्डस, हैजर्डस, राइट. टू ऑनरस, टू बोरिंग और सिंपली टू अनइकोनॉमिकल फॉर ह्यूमन बींग्स टू अंडरटेक. आजकल के दुनिया के अंदर मतलब बेटे जो रोबोट्स बने हैं वो काम जो बहुत मुश्किल हैं, जो बड़े ख़तरनाक हैं, जो बहुत बोरिंग हैं, जो बड़े अनइकोनॉमिकल हैं, फाइन, उनके लिए हम इंसानों की जगह हम रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं. रोबोट्स. फाइन. आई थिंक यू गॉट इट. नेक्स्ट बेटे हमारी कैटेगरी देखिए. जो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है वो है क्लासिफिकेशन. फाइन. अब इस पैराग्राफ के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं, हम डिफरेंट सेगमेंट बनाते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं. जैसे कोई थीसिस का बेटे अपने नाम सुना, जैसे कोई रिसर्च वर्क करते हैं. मैं अपने लिटरेचर के अतबार से अगर आपको बताऊं कि पहला हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन का होता है, उसके बाद फिर हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है,
थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद जो हमने काम, जो हमारी तहकीक होती है, जो हमने टेक्स्ट किताब का इंतखाब किया होता है, उस पर हम अपना एनालिसिस देते हैं और एन पे कंक्लूजन लाइक दिस, राइट। तो ये क्लासीफाई करते हैं हम चीज़ों को। उस तरह की एग्जांपल आपको यहाँ मिलेगी, ज़रा मुलाहजा फरमाइए। A classification paragraph is developed by breaking the main idea into specific categories. अब मेन आइडिया को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में हम, कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करेंगे। इट्स जनरली यूज व्हेन वी वांट टू इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ आइडियाज इन सच case we start with giving an overview of what is coming. See the following example. हम बता रहे थे कि आगे इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। See the following example. Our main concern was to empirically test the theory that forms the background for this work. पहले मतलब बेटे हम एक theory लेते हैं, to a great extent we have succeeded in showing our theory is valid. फिर हम अपनी theory की validity का जिक्र करते हैं। फिर chapter 2 start होता है, यानी पैराग्राफ में chapter 1 के अंदर क्या, chapter 2 के अंदर क्या होगा, chapter 3 के अंदर क्या होगा, यानी एक पैराग्राफ के अंदर आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं। फाइन। chapter 2 reports a study which shows that the rate of perceiving variations in length relates directly to the number of connectives in the base structure of the test. जो आपने टेस्ट किया उससे सारे रेलेवेंट हैं, ये आप चैप्टर 2 में बात करेंगे। चैप्टर 3 में आप क्या बात करेंगे, वी रिपोर्ट अ स्टडी दैट फाउंड दैट सब्जेक्ट्स perceive as variable units only what the theory claims is a unit, right? कि theory किन चीज़ों पे apply हो रही है, अंदर बेटे उसकी बात होगी। Another series of crucial studies is the comparison contrast experiments reported in chapter 4 which show that we do not distinguish complex concepts of different lengths as some current theories do. मतलब बेटे इस चैप्टर के अंदर आपने क्या करना होता है, हमने चीज़ों की कंपैरिजन और कंट्रास्ट की बात करनी होती है। फाइन। तो ये बेटे आपको जो मतलब इसको आप सिंपली समझें, अगर आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है, आपने अभी रिसर्च नहीं की हुई, यानी एक चैप्टर के अंदर हम तमाम जो आपने बातें डिस्कस करनी होती हैं अगले चैप्टर्स में, आप एक पैराग्राफ में सारे बता देते हैं, उसको आप क्लासीफाई करते हैं। आई थिंक यू गॉट इट। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। Problem and solution paragraph बहुत ईजी है। In this type of paragraph, the various possible solutions to a problem at hand are discussed. See the following examples. Getting more cornea for the blind is a difficult choice. अब यहाँ पे बेटे हम कोई प्रॉब्लम है, फिर उसका हम सोल्यूशन की बात करेंगे। कहता है जो कॉर्निया है मतलब मेडिकल के टर्म है कि जो ब्लाइंड अंधे लोग हैं उनके लिए हासिल करना बड़ा मुश्किल है। टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैव बीन प्रपोज्ड फॉर गेटिंग मोर कॉर्निया। वन आंसर इज टू इम्पोज कंपल्सरी आई डोनेशन ऑन पेशेंट्स डाइंग इन हॉस्पिटल्स, कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में जिनकी डेथ हो जाती है कि वो अपनी आँखों को डोनेट कर दें, उन पर ये लाजमी करार दिया जाए, उन पर ये इम्पोज कर दिया जाए। दूसरा ये द अदर आंसर इज़ टू एजुकेट द मासेस थ्रू विगरस कैंपेन्स फॉर वॉलंटरी पोस्ट डेथ आई डोनेशंस, कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखें डोनेट कर दें। फाइन, चलें आर्ग्यूमेंट हमारी बेटे लास्ट कैटेगरी है। आर लास्ट कैटेगरी इज़ आर्ग्यूमेंट। फाइन, an argument paragraph is used when we want to express an opinion and convince the readers using facts to substantiate our stand. For example, यानी इस बेटे पैराग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी इलस्ट्रेशंस देंगे क्लास, यानी जो इलस्ट्रेशन का वाला जो पैराग्राफ है वो भी इसमें शामिल हो सकता है, क्लासिफिकेशन टेक्निक भी यूज़ हो सकती है। हमने करना क्या होता है, अपना जो टॉपिक होता है जिस पे इशू पे हमने बात करनी होती है उसके बारे में हमने रीडर को कन्विंस करना होता है। मुख्तलिफ हम एग्ज़ाम्पल्स देंगे अपने स्टैंड को, अपना जो आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया होता है उसको साबित करने के लिए मुख्तलिफ आप फैक्ट्स की आप हक़ाइक़ सामने रखेंगे। तो ये आर्गूमेंट जैसे होता है, हम दलीलें देते हैं, उस तरह के पैराग्राफ है। मेरा मुलाज़ा फरमाइए। ट्रैवल कैन बी अ हॉरिबल एक्सपीरियंस फॉर सर्कस एनिमल्स। ट्रैवलिंग, कहते जो सर्कस के एनिमल्स होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल ये काम हो सकता है कि वो ट्रैवलिंग करें। दे आर क्राउडेड इनटू बीस्ट वैगन्स दैट आर ऑफन टू स्मॉल फॉर देम, बड़ी तंग सी वैगन्स में उनको मतलब बंद किया जाता है, ले जाया जाता है, कैरी किया जाता है। फ्रीक्वेंटली दे ट्रैवल इन एक्सट्रीम वेदर। Moreover, the animals are deprived of their social life in the wild that is so important. फ्रीक्वेंटली वो उनको बड़े ही जो सख्त मौसम होता है, राइट, जैसे इंटेंस वेदर, इनक्लेमेंट वेदर होता है, जब बहुत गर्मी बहुत सर्दी होगी उस मौसम में उनको कैरी करते हैं। मोरोवर द एनिमल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर सोशल लाइफ इन द वाइल्ड एंड दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और इस तरह जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी सोशल लाइफ से महरूम हो जाते हैं। फाइन, वी कैन यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 or 3 of these techniques in a single paragraph as
And it is shown in the following example. We may begin a paragraph with illustrating details and then use the classification technique to further explain the main idea. The United States is at present the world's largest exporter of agricultural products. अब हम ये बात कर रहे हैं कहते बेटे बाकी टेक्निक भी जैसे हमने बात की क्लासिफिकेशन की और इलस्ट्रेशन की टेक्निक भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं ये देखें ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंपॉर्टेंट है फाइन We may begin paragraph right. The United States is at present the world's largest exporter of agricultural products. Its agricultural net balance of payments in recent years has exceeded US 10 billion a year. मतलब बेटे वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अब उसकी जो मतलब पेमेंट्स है वो कितनी हो गई है exceeded US 10 billion a year. Fine. As a rising cost of imported petroleum and other goods have increased the US trade deficit. This agricultural surplus has taken on great financial importance in both the domestic and international markets. मतलब वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है ना जो एग्रीकल्चरल उससे फिर जो चीज़ें वो दरामद करता है जैसे पेट्रोल बाहर से लेता है उससे वो चीज़ें बैलेंस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है इकोनॉमी में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है एक्सपोर्ट करने से जो चीज़ें फिर दरामद करना फिर आसान हो जाती हैं उससे बैलेंस हो जाती हैं फाइन नेक्स्ट बेटे देखिए First, agricultural exports maintain profitable market price for the American farmer and bolster the national economy by providing over 1 million jobs. अब देखें इससे जॉब्स भी मिलती हैं फिर दूसरा क्या उनकी जो नेशनल इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होती है बोल्स्टर क्या मतलब होता है इंक्रीज होती है फाइन इनकम फ्रॉम फार्म एक्सपोर्ट्स अलोन इज यूज्ड टू परचेस US $9 billion worth of domestic farm machinery and equipment annually. इससे वो इतनी मशीनरी खरीदने के काबिल भी हो जाती हैं Exports of US agricultural products also reduce price depressing surpluses. Fine. यानी इसका बेटे उनकी और भी बहुत सारी जो मतलब कैटेगरीज हैं जो मतलब एक्सपोर्ट कार्य होते हैं एग्रीकल्चर के उससे उनको फ़ायदा होता है विदाउट एक्सपोर्ट्स द गवर्नमेंट वुड बी सब्सिडाइजिंग अमेरिकन फार्मर्स मोर देन 10 बिलियन a year इवन ओवर द करंट रेट मतलब इसका फिर गवर्नमेंट को खुद से सब्सिडाइज करना पड़े काफ़ी ज़्यादा मतलब बर्डन आएगा गवर्नमेंट पे अगर उनकी इतनी एक्सपोर्ट ना हो फाइनली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स प्रोवाइड एन एंट्री टू फॉरेन मार्केट्स दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अदर इंडस्ट्रीज अब क्या होता है कि एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट्स हैं इससे क्या होता है कि उनको एक इंटरनेशनल मार्केट में एक एंट्री फॉरेन मार्केट में एंट्री मिलती है और जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसको एक्सप्लॉयट करती हैं एक्सप्लॉयट से मतलब बेटे यहाँ पे आएगा वो उसको यूज़ करती हैं जैसे हम कहते हैं यार मैं अपने टैलेंट को एक्सप्लॉयट करना चाहता हूँ मतलब क्या यूज़ करना चाहता हूँ शी एक्सप्लॉयटेड हर टैलेंट in modeling, in dancing, in anything, right? इस्तेमाल करने के कॉन्टेक्स्ट में मतलब नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव मीनिंग भी होता है आई थिंक यू गॉट इट लिमिट ये आपका जो पैराग्राफ की काइंड्स हैं ये आपको इख्तिताम को पहुंचती हैं आई थिंक यू आर वेल क्लियर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स एग्जाम्पल्स के बारे में बहुत ओवर कंसर्न नहीं होना सिंपल आपने रीडिंग करनी है उसका बस जिस्ट एक आपने सेंट्रल आइडिया आपने उसको परसीव करना है कि उसी जो हमने टाइप पढ़ी है उसके मुताबिक है फाइन तब हम नेक्स्ट देख रहे हैं हमारे पास अगली कैटेगरी है ड्राफ्ट फाइन कि हम ये अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें राइट राइटिंग फर्स्ट ड्राफ्ट रिवाइजिंग एंड फाइनलाइजिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको ज़रा आप गौर से देख लें राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट इज ऑल्सो is a step between preparation and editing of text. However, the first draft demands the most clarity of the idea one wants to put in the text. Given below are few guidelines. अब जब हमने कुछ चीज़ लिखनी होती है ना पहले हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट होता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं फिर हम उसको रिवाइज करते हैं फिर हम फाइनलाइज करते हैं ये 3 कैटेगरी हैं ज़रा इनको मुलाजा फरमाइए नंबर 1 थिंक अबाउट अ टॉपिक एन इशू अ पर्सन अ प्लेस अ प्रोसेस कि आपको टॉपिक क्या है उसके बारे में देखना है क्रिएट अ जनरल आउटलाइन बनाइए उसके बारे में ट्राई टू गेट एज मैनी आइडियाज़ एज पॉसिबल ऑन द टॉपिक उसके बारे में मतलब जितने आइडियाज़ हैं वो सारे लिखें चूज़ एंड नोट डाउन द रेलेवेंट आइडियाज़ उस रेलेवेंट आइडियाज़ उनको आप नोट डाउन करें सेलेक्ट व्यू पॉइंट व्हाट इज़ योर मेन व्यू ऑन द टॉपिक एंड टेंस कौन सा आपने टेंस यूज़ करना है आपका व्यू पॉइंट क्या है मेन व्यू क्या है उसका आपने इंतखाब करना है कि मैंने ग्रामर के अतबार से किस टेंस में लिखना है नंबर 6 डेवलप द आइडियाज़ एडिक्वेटली यूजिंग द टेक्निक्स वी हैव जस्ट डिस्कस्ड
कि आप अपने डेवलप द आइडियाज़, आप ऐसे आइडियाज़ को आप डेवलप करेंगे जो एडक्वेटली यूजिंग द टेक्निक्स वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, जो हमने पहले टेक्निक्स यूज़ की हैं उसके मुताबिक वो लेके चलेंगे. डू नॉट वरी अबाउट गुड इंट्रोडक्शन और एनी एम्फेटिक इंक्लूजन एट दिस स्टेज. जब आप पहला ड्राफ्ट लिख रहे होते हैं फिर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्ट या अच्छा एंड देने की आपने फिक्र नहीं करनी है. मार्क सर्टन पार्ट्स इफ़ यू फाइंड दैम डिफ़िकल्ट टू राइट बट ट्राई टू कंप्लीट द फर्स्ट ड्राफ्ट. मार्क certain parts if you find them difficult to write. जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं उनको मार्क करते रहें ताकि उसको आप दोबारा से मतलब उस पर नज़रसानी कर सकें. चूज़ एनी वे ऑफ राइटिंग बाय हैंड वर्ड प्रोसेसर that you are comfortable with. चाहे हाथ से लिखें चाहे कंप्यूटर पे लिखें, सब to you. Do not bother about spelling, grammar, vocabulary. पहले ड्राफ्ट में इन चीज़ों के बारे में कंसर्न नहीं होना. Do not check the parts of your text as and when they are completed. मतलब डिफरेंट पार्ट्स के जो पार्ट्स होंगे टेक्स्ट के उनके बारे में पहले ओवर कंसर्न ना हो. यू कैन डू इट व्हेन यू रिवाइज द ड्राफ्ट. जब ड्राफ्ट को आप अपने ड्राफ्ट को रिवाइज करेंगे तब चीज़ें जो रह गई हैं वो अधूरी हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी. 12 वेरी सेट अ डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड ट्राई टू मीट द सेम. आप एक डेडलाइन अपने लिए बना लेंगे कि इस वक्त तक हमने इसको सॉल्व करना है. रिविजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द राइटिंग प्रोसेस. रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द वर्ड रिवाइज इज अ लैटिन रूट रेविडेयर मीनिंग टू सी अगेन. अब इसका मतलब होता है कि अपनी चीज़ों को दोबारा से आपने देखना है. इसके आप पॉइंट्स ज़रा बस आप देख लें. द राइटर शुड चेक द ड्राफ्ट फॉर द फॉलोइंग: completeness of the content, sequence of parts, conciseness and clarity of expression, agreement between text and an illustration, format. उसको फॉर्मेट चेक कर लें कितनी वो जो एक्सप्रेशन है वो क्लियर हैं, पार्ट्स में एक सीक्वेंस है, ये सारी बातें आपने देखनी है. Here are the guidelines for revisions. Stay away from your first draft for at least 24 hours after its completion. इन्हीं से आप ज़रा पहला ड्राफ्ट मुकम्मल किया 24 घंटे आप इंतज़ार करेंगे, उससे दूर रहेंगे. Go through it to check the features mentioned above. जो फीचर्स आपने अभी ऊपर डिस्कस किए फिर हम सारे देखेंगे वहाँ पे. Get back from someone else who has notes in the first. आप किसी और से भी फीडबैक ले लें. Get feedback जो मतलब किसी और वो उसके बारे में अपनी फीडबैक दे. After receiving comments, check their accuracy by clarifying with the speaker, right? After receiving comments, check their accuracy by clarifying with किसी और स्पीकर से आप गपशप लगाएं ताकि आप कुछ चीज़ें और क्लियर कर दें. Number 5, check whether each paragraph relates to the main topic of the text. ये भी आप चेक करिए कि जो बाकी पैराग्राफ्स आपके मेन टॉपिक से रिलेटेड हैं कि नहीं. Read aloud so as to get a feel of how your text will sound to others. तो ऊँचा पड़ी ताकि बाकी लोगों को भी आप पे इम्पेक्ट जाए कैसा लग रहा है. चेक द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. अपना तारुफ जो इख्तिताम है, राइट, प्रोलॉग एपिलॉग को दोबारा चेक करिए. चेक द सोर्सेज. जिन सोर्सेज से आपने हवाले, जिन किताबों से अब इंटरनेट वेबसाइट से आपने हवाले लिए हैं वो तमाम को चेक करिए. द फर्स्ट ड्राफ्ट शुड बी रिवाइज एज पर द अबव गाइडलाइंस, राइट. सेवरल रिवीजन्स मे बी रिक्वायर्ड बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेज. आप कई दफ़ा आप रिवाइज कर सकते हैं. जो आपका रिवाइज वाला पोर्शन है सेगमेंट है इसमें हम कई दफ़ा रिवीजन कर लेंगे. एक दफ़ा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे फिर रिवीजन कई दफ़ा की जा सकती है. The final draft should ideally be free of all the kinds of errors. Once the first draft is checked for accuracy, conciseness and clarity of the content, it has to be proofread. यानी सब कुछ आपने चेक कर लिया, अब आपने इसको प्रूफ रीड करना है जब आपने फाइनल करना है. The proofreading stage takes care of correcting errors in spelling, grammar, punctuation, sentence construction. The following guidelines may help you in preparing the final draft. Number 1, delete sentences that do not contribute to the main idea. Use active verbs. आपने active verbs ज़्यादा यूज़ करनी है. Make sure the verb tense is consistent throughout. कि आप एक ही tense में चले हैं. Fine. Avoid colloquial words or phrases. जो informal expressions हैं वो बेटे आपने यप नोप जैसे वर्ड होते हैं ना, वाना गोना, ये अपने अंदर नहीं लिखने. colloquial स्टाइल होता है. Avoid contractions such as can't, isn't. ये जो contraction हम लिख देते हैं ये नहीं लिखनी चाहिए. पूरा वर्ड do not, can not, is not लिखना चाहिए जब formal documents होते हैं. Ensure इफ़ेक्टिव ट्रांजेक्शन्स बिटवीन पैराग्राफ्स. उनमें जो ट्रांजेक्शन है वो बड़ी इफ़ेक्टिव हो, यानी बड़े लॉजिकली कनेक्टेड हों चीज़ें आपस में. डबल चेक साइटेशंस. जो आपने हवाले दिए उनको अच्छे से दोबारा से चेक करिए. चेक फॉर एरर्स इन ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन.
रन ऑन सेंटेंसेस, सेंटेंस फ्रैगमेंट्स, यानी ग्रामर के अतबार से उसको स्पेलिंग, पंक्चुएशन, हर चीज़ को आपने बड़े आसान अंदाज से चेक करना है, राइट। नंबर 9 क्या है, यूज़ द थिसॉरस टू रिप्लेस एनी वर्ड विद अ मोर इफेक्टिव सिनोनिम्स इफ़ नेसेसरी। अब बेटे आपने क्या करना है कि आपने थिसॉरस भी यूज़ करना। थिसॉरस होता है कि अगर आपने को वर्ड लिखा है उसको प्रॉपर किसी और वर्ड से अगर आप रिप्लेस करेंगे इट वुड बी मोर इफेक्टिव, फाइन, यानी अच्छा सिनोनिम को और जो बिफिटिंग वहाँ पे हो, ज़्यादा फिट लगता हो आपको, तो आपने वो वहाँ पे प्लेस करना है। आई थिंक यू गॉट इट राइट। दैट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आई थिंक यू आर वेल क्लियर। इसके बारे में बेटे आपने ये करना है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ें आप क्लियर कर लें, इनको आप पढ़ते जाइए, मतलब जो ऑब्जेक्टिव बने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं, ताकि फाइनल आपका आप जब भी आ रहे you must be well prepared for your final exams. Thank you very much for staying with me. Inshallah, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.